Hi everyone, welcome to you all in my another video, and today I'm going to discuss about one of the most beautiful and richest country in the world. You can imagine that 1 real is equivalent to 251 Indian rupees, so even I'm in Australia, Australia is about 50 rupees and they have the 250 rupees. So I'm going to discuss about Kuwait, and Kuwait, a lot of scope is there, and so we'll see A to Z the information, especially what are the requirement of the job, what the procedure, and the fees or salary and the current scenario. So all these I'm going to discuss in this video. And I always make video for pharmacists around the world. I already uploaded about 300 videos in each of the country. So wherever you want to work, just go to my channel and search the videos. And I always make the new videos in wherever is the possibility to work as a pharmacist, then I make videos. So please like and subscribe my videos so I can make more videos for you. And तो चलिए आप शुरू करते हैं. So hi दोस्तों, now we are going to start here. This is a pharmacist information in Kuwait, and Kuwait का जो highest currency है in the world में, 1 KD is equivalent to 250 rupees. So this is like I was just surprised to see the currency. I was just jealous because in Australia, so you can see there are some pictures from Kuwait. This is the most beautiful country, very small country basically. So it will be a very good option for pharmacists if you are looking there. And this is basically an Arabian country. So this is called Gulf Cooperation Council countries. So these are very rich countries. I already make video on KSA, Saudi Arabia. There are 3 videos, and I already make on 2 videos on Oman, 2 video on UAE. So and today I'm going to discuss about Kuwait, and then next is the Bahrain and Qatar. If you want me to make any other video on any other country, so I can make, just leave a comment below. So here, if you see here, this is very small country, and this country is very beautiful, and the population is about 5 million. I can say it's just 5 million, and just 1.5 million, those are the Kuwaiti citizens, and rest of them, they are coming from the other country, they are working. So now you can say that every 3 people, 2% is they migrated from other country, and they are just working there, So Kuwait, one of the good option, and maybe for you. So if you are looking, especially especially if you are fresher or something, and you want to earn some money 2-3 years, then you can move to a like Australia, US, Canada, UK. It will be a good option for you. So the in Kuwait, the system is that first you have to find a job there. You have to contact through any agent or through the website. There are many jobs, LinkedIn or those kind of things. Once you got job, then this your pharmacy registration. The process will initiated by a sponsor. जो कंपनी है जो आपको हायर करेगी, वो ही सारा प्रोसेस करवाएगी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. So the first, the request to issue professional pharmacist license from applicant employer. जो एप्लीकेंट जहाँ से आपकी जॉब लगी है, वो आपको एक इशू करेगा प्रोफेशनल फार्मासिस्ट सर्टिफिकेट जो है. और उसके बाद जो है एक आपकी जो कॉपी चाहिए डिग्री सर्टिफिकेट्स की. इसको बोलते हैं ये लोग साइंटिफिक सर्टिफिकेट चाहिए ना, जो भी आपने डिग्री किया सारी मार्कशीट और जो है उसकी जो डिग्री, वो सारी चीज चाहिए. और कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस, आपने जहां भी काम किया एज ए फार्मासिस्ट, एज हॉस्पिटल में, कम्युनिटी फार्मेसी में, वो चाहिए यहाँ पर, जो भी आपका एक्सपीरियंस है. और जो आपको चाहिए, आपकी पासपोर्ट की जो कॉपी चाहिए होती है उसके लिए. और एक चाहिए आपको जो है कॉपी ऑफ प्रोफेशनल लाइसेंस. मतलब जब भी आप किसी दूसरी कंट्री में काम करने जाएंगे, तो यू मस्ट बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन योर कंट्री. So if you are looking to job to any country, so you must be registered in India. That registration, they are asking the copy. If you are registered pharmacist in UP, for example, I'm a pharmacist in Uttar Pradesh, so wherever I have to apply, I just show that the same. And then 3 photos. This is like a passport side, 3 photo, 1 passport, and your registration, your degree certificate, and these are the requirement you need to submit. और उसके बाद में जो है ये जो प्रोसीजर है, फिर उसके बाद प्रोसीजर क्या करना होगा. फिर ये जो है विजिट द मेडिकल लाइसेंस, वहाँ पर एक डिपार्टमेंट है, वहाँ आपको विजिट करना होगा. सबमिट द रिक्वायरमेंट, ऑल द डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा. रजिस्टर द एप्लीकेंट डिटेल इन द डिपार्टमेंट records, fill the service application form,
एंड पे द फी। इसकी जो फीस है वो पे करनी पड़ेगी, तो फीस मैं आगे बताता हूँ। तो बेसिकली आपको करना क्या है, पहले आपको जॉब ऑफर मिलनी चाहिए, जॉब आपको ढूंढनी है, उसके बाद जो है सारा जो काम है वो स्पॉन्सर कराएगा, और फिर जब आप वहाँ पहुंच जाएंगे फिर आप ये वहाँ पर ऑफिस में जाएंगे, फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मगर होता क्या है राइट नाउ कि आपको कोई भी वहाँ जॉब दे देता है, पर वो बुलाता है आपको एज ए असिस्टेंट फार्मासिस्ट आप काम कीजिए, तो आपको लो सैलरी देगा और आपको 6 महीने 1 साल वहाँ काम करवाएगा, और उसके बाद फिर ये आपको रजिस्ट्रेशन करवाएगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका फार्मासिस्ट बन जाएंगे, तो फिर आपकी सैलरी को बढ़ानी पड़ जाती है। तो इसको उसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि एटलीस्ट 1-2 साल तक आपका रजिस्ट्रेशन करवाते ही नहीं है, वो ऐसे ही काम करवाते रहेंगे एज ए असिस्टेंट फार्मासिस्ट। तो है ना, ये कुवैत का ये सिस्टम है। और कुवैत की जो फीस है बेसिकली इसकी 10 केडी होती है। जो कुवैती जो जो दीनार है वो 10 होती है, तो अगर हम आज की डेट में इसको इक्विवेलेंट करें तो ये जो है 2500 रुपए के आसपास होती है। और वैसे अगर हम देखें कि जो है यहाँ पर जो एक दीनार है उसकी जो कीमत है वो है 251 रुपीज। उसको कैलकुलेट करने के बाद मैंने बताइए 2510 रुपए के आसपास होगी। मगर ये जो करेंसी है ये थोड़ा सा आगे पीछे होती रहती है। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये आज की करेंसी है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है। अब बात आती है भैया सैलरी कितनी मिलती है यहाँ कुवैत के अंदर। तो कुवैत के अंदर बेसिकली जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है, आप फार्मासिस्ट नहीं है, वहां पर आप ऐसे असिस्टेंट काम करते हैं, तो फिर आपको सैलरी मिलती है अबाउट 300 350 के आसपास वो देते हैं आपको इनिशियली, और फिर वो आपको 1-2 साल तक काम करवाते हैं, और उसके बाद जो है फिर वो आपको सैलरी हो जाती है 500 से 600 केडी पर मंथ आपको मिलती है ना। और ये बेसिकली मैंने एक कल मैंने एक फार्मासिस्ट से वहाँ बात की थी। वो एक इंडियन फार्मासिस्ट है, वहाँ पर 7-8 साल से है, उसने मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन बताई थी। मगर मुझे कभी कभी गुस्सा आता है, बुरा भी लगता है कि जो इंडियन फार्मासिस्ट है दूसरे की हेल्प नहीं करना चाहते हैं। वो अपनी तो हेल्प चाहते हैं। उसने मुझसे पूरी अपनी इन्फॉर्मेशन ले ली ऑस्ट्रेलिया के बारे में, और मैंने उसको कहा कि भाई एक इंटरव्यू दे दिए, तो उन्होंने इंटरव्यू को मना कर दिया। खैर मैं उनका नाम नहीं देना चाहता हूँ यहाँ पर। तो आप यहाँ देखिए, फिर मैंने उसकी बात पे मैंने रिलाई नहीं किया। फिर मैंने यहाँ पर चेक किया, एक वेबसाइट है, ये इसका नाम है payscale.com। ये पूरी दुनिया में आप किसी भी प्रोफेशन है, कोई भी आपकी जॉब, आपको सैलरी देखनी है किस प्रोफेशन की कितनी सैलरी है, तो वो ऑन एन एवरेज वो गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से दिखाते हैं। तो उन्होंने दिखाया है कि 6104 केडी, मतलब जो कुवैती जो दीनार है एक साल में वहाँ की जो है सैलरी है। तो ऑन एवरेज 500 जो केडी है पर मंथ जो है वहाँ पर सैलरी मिलती है ऑन एन एवरेज कुवैत के अंदर। तो अगर हम कन्वर्ट करें 251 से, अगर आपको मिनिमम आपको 350 जो इनिशियल स्टार्टिंग पे आप जाते हैं ऐसे असिस्टेंट फार्मासिस्ट, बिगिनिंग में भी जाएंगे आप, तभी भी आपकी जो सैलरी हो जाती है वो आती है 87,000 इंडियन रुपीज में। और अगर आप सिंगल हैं, वहाँ रहने खाने के खर्चे के बाद भी आप जो है 50,000 तक सेविंग कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली है तो फिर मुश्किल हो जाएगा इतनी ज्यादा सेविंग करना, मगर आप सिंगल हैं तो आप 50,000 के आसपास आप इजिली जो है 50-60,000 आप लोग जो है सेविंग कर सकते हैं। और अगर जैसे बताया मैक्सिमम होती है 700, तो अगर उसको जो सीनियर होते हैं 5 साल में उनको एक्सपीरियंस हो जाता है, उनको मिल जाती है 600-700 तक उनको मिलती है। तो उस केस में जो है उनको जो है यहाँ पर 1,75,000 के आसपास उनको सैलरी मिलती है। और कुवैत में एक अच्छी बात ये भी है दोस्तों कि यहाँ पर जो है टैक्स फ्री है, यहाँ टैक्स नहीं है। तो जितनी भी सेविंग्स हो रही है ये आपको डायरेक्टली अपने घर पे भेज सकते हैं। अब अगर देखेंगे ये इस पे स्केल वेबसाइट के हिसाब से कि एक साल में कितनी इनकम बता रहा है, तो ये बता रहा है कम से कम 15,32,000 के 15,32,000 ईयरली, मतलब 1.25 से लेकर 1.5 लाख के आसपास पर मंथ सैलरी मिलती है वहां पर, है ना। तो ये जो सैलरी मैंने बताई ये है एक नॉर्मल फार्मासिस्ट की ये सैलरी। मगर अगर आपने बीसीपीएस किया है, आप जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं सर्टिफाइड, तो ये सैलरी जो है इंक्रीज कर जाती है आपको 1,000 तक। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, वो मस्ट करना चाहिए। आपको ऑनलाइन एग्जाम होता है, उसके ऊपर मैंने 3 वीडियो बनाकर डाले हुए हैं और एक मैंने इंटरव्यू भी डाला हुआ है उसके ऊपर, तो आप उसको देखिए। और आपके पास टाइम है तो उसके लिए आप मस्ट दें उस एग्जाम को। उसके बाद इतनी लाइन खुल जाती है कि आपकी सैलरी डबल हो जाती है बेसिकली गल्फ के अंदर। और जितनी भी कंट्री है पूरी दुनिया में उसको मानती हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया में भी अगर आपने कर लिया तो हर कोई आपको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देगा और आपको हाई सैलरी होती है और बीसीपीएस करने के बाद में।
तो जो मेरी एडवाइस है दोस्तों, लास्ट में जैसे मैंने बताया, यहाँ पर कुवैत में काम करने के लिए आपको पहले जॉब ढूंढनी है, उसके बाद वो सारा जो प्रोसेस है वो करवा देगा। और पर बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, असिस्टेंट फार्मासिस्ट आपको हायर करते हैं, फिर बाद में 1-2 साल के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, आप एज ए फार्मासिस्ट आप वहाँ पर काम करते हैं। मगर जो लोग वहाँ पे हैं ऑलरेडी, वो लोग बहुत सारे लोग खुश नहीं, बोलते इतने पैसे नहीं है और हम लोग को जो है काम करना पड़ता है बहुत ज्यादा। तो जो को आपको पता है कि रिटेल फार्मेसी जो होती है वहाँ पर काम करना पड़ता है जो है 9 से लेके 11 घंटे तक है ना, आवर ज्यादा काम करना पड़ता है रिटेल फार्मेसी पर। वहाँ पर अगर आप फार्मासिस्ट बन जाते हैं तो गवर्नमेंट में भी बहुत सारी सैलरीज वहाँ अच्छी मिलती है और सेविंग अच्छी है और लाइफ बहुत ही अच्छी है। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा, मेरी एडवाइस है आप मस्ट जाएं वहाँ पर। मगर वो लाइफ टाइम की सेटलमेंट नहीं है। इनिशियल के 2-3 साल आप वहाँ रुकें, सेविंग कर लें 10-15 लाख रुपए, और फिर आप उसके बाद आप जो है वहां से छोड़ के कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, जहाँ भी जाना है आपको, आप लोग वहाँ जा सकते हैं, है ना। अब बात आती है भैया कोई रिस्क है नहीं, कोई भी रिस्क नहीं है, बहुत ही सेफ कंट्री है। और मैं ट्राई स्टिल कर रहा हूँ वहाँ इंटरव्यू करने की। मैंने एक बंदे को बोला था, उसने इंटरव्यू नहीं दिया, पर मैं किसी और बंदे को वहाँ ढूंढता हूँ। और हाँ, अगर किसी को जानते हैं, इफ यू आर लिविंग इन गल्फ कंट्री, एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज गिव मी इंटरव्यू, सो वी आर जस्ट यू कैन गाइड द फार्मासिस्ट फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, यू नो। तो हम लोग का बेसिकली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो जूनियर्स को अच्छे से गाइड कर सकें। अगर हम किसी की हेल्प करते हैं, वो आपको दुआएं देगा। तो जो है हम तो अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं, दैट्स फाइन, मगर आपको हेल्प भी करना चाहिए, वो भी एक हमारा दायित्व बनता है। तो अगर आप किसी कंट्री में काम करते हैं तो फार्मासिस्ट, तो प्लीज लीव कमेंट, आई विल कांटेक्ट यू, यू कैन वी कैन हैव अ चैट। एंड तो ये था आज के वीडियो दोस्तों। अगर आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी, तो प्लीज इसके नीचे कमेंट करिएगा, तो फिर मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और प्लीज मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि मैं और वीडियो बना सकूँ आपके लिए। और जो है जितना आप लाइक करते हैं मुझे अच्छा लगता है, मैं और वीडियोस बनाता हूँ। रात के यहाँ पर 11 बज रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं होता दिन के अंदर, मैं रात को यहाँ पर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।